Please record. All the videos on, off videos will be out. Raven, Gargi, Dianshi, Krish. I messaged you. So I switched it on 5 minutes. I'm logging in from another device. Okay. Gargi, where's your message? You didn't message it. So, like in the Zoom chat box only, I'll resend. Zoom chat box. Zoom chat box also you haven't met. 1 minute, I'll remake. Chalo. Rest of you, come on, videos on, all of you. Ruchi, Nishi, Anuj, Preet, Vanessa, all the videos on. ठीक है, चलो. Let's continue with retirement. What happens in retirement of a partner? Let's brief up फटाफट. What happens in retirement? Partner आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. जा रहा है. Partner is leaving the business. That's what is called as retirement, right? So retirement may be due to multiple reasons, many other reasons apart from old age. It may be due to better opportunities. It may be due to new line of business he wants to join. It may be due to disputes between the partner. It may be due to his ill health. Okay, unfavorable health conditions. It may be due to unfavorable business situations. Whatever the reason, if the partner wants to leave the business, that's what is called as retirement. Okay, the retirement not just means old age. It means a partner leaving the business. Keep that in mind. A partner departing from the business, that's called retirement. So whenever the partner departs from the business, retirement occurs. And what all changes are we supposed to show in the books of accounts? Pehla to ratios. How many ratios do we consider at the time of retirement? 3. How many ratios do we consider at the time of retirement? Ratio, Old ratio, new ratio, and new gain ratio, Gain and ratio. gain ratio. What is old ratio? Gain ratio and new ratio. हाँ? Old ratio का मतलब? ratio in which the old partners share their profit. Old partners share their profits. In our case, there will be 3 minus 1 ka problem. So 3 old partners, they share their profits and losses. That is old ratio. Is that clear? What is gain ratio? ratio in which they sacrifice the old ratio for the new ratio. Sacrifice. मतलब जिससे Gain. The share यहाँ पे of The sacrifice share of होगा. partners that they get after the partner. हाँ, One partner यहाँ retires. पे suppose C retires, तो C का बचा हुआ share belongs to whom? A and B. C का बचा हुआ share belongs to A and B. वो share जिस ratio में आपस में divide करके ले लेंगे, that is what is called as gain ratio. So the ratio in which partners benefit, not sacrifice, ratio in which existing partner benefit due to the retiring partner. Okay. The ratio in which existing partner benefit due to the exit of the retiring partner, that's called gain ratio. And what is new ratio? new ratio in which partners will share their profit. Existing partner, they share profits and losses. Existing partner share profits and losses. Now, if I tell you A, B, C are sharing ratio as 3:2:1 and B retires, what's your gain ratio and what's your new ratio? 3:1. Very simple. Directly remove the retiring partner. You get the gain ratio and you get the new ratio. Is that clear? Very simple. Over here in retirement, no need to calculate anything. And but what if you are given old ratio and new ratio? New ratio minus old ratio. New ratio minus old ratio.
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेन रेशियो ढूंढना है। यहाँ पे अज्यूम मत करना ओ आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू जी आर। यहाँ पे कैसे करने का, एन आर माइनस ओ आर इज इक्वल टू जी आर, नो फॉर्मूला। ओके, gain ratio is new ratio minus old ratio. Sacrifice was old minus new, gain is new minus old. Is that clear? तो रेशियो पार्ट में 3 रेशियोज थे, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, पुराना रिजर्व्स पुराना लॉसेस किसको बिलोंग करता है, All partners. ऑल पार्टनर्स, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सेम स्टेप्स, हाँ सेम स्टेप्स, मैंने आपको एडमिशन के वक्त स्टेप्स लिखवाए थे ना। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस, स्टेप नंबर 3 कैपिटल होता था लेकिन यहाँ पे कोई कैपिटल होने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई कैपिटल होने वाला नहीं। चौथा स्टेप था गुडविल और पांचवा स्टेप था रिवैल्यूएशन, सेम 5 स्टेप्स। उसके बाद एक्स्ट्रा हमने सीखे, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटी पेड ऑफ, ये एक्स्ट्रा एंट्रीज भी यहाँ पे भी होंगे सेम। ओके, उसके बाद हमने सीखा था प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल, फिर हमने सीखा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, वो भी यहाँ पे होगा अगर हुआ कोई सम में तो, एंड उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट। So all the steps in admission will be following the same steps in retirement. Now coming to revaluation, will you do revaluation at the time of retirement? Revaluation करना है at the time of retirement? Yes. And revaluation का मतलब क्या है, जो भी assets और liabilities थे उसको आप लेके आओगे मार्केट वैल्यू पे, और उसके ऊपर जो भी गेन या लॉसेस होंगे वो कौन शेयर कर लेगा बिफोर रिटायरमेंट? Who will share the gains and losses? All the partners. All the 3 partners. Old partners, your old partners are all the 3 partners, old partners in old ratio. Is that clear? And you also have goodwill. How many cases of goodwill did we discuss in retirement? 4. 4 cases. What was the case 1? Anyone remembers case 1 of goodwill? In the share. Goodwill is raised to the extent of retiring partners. In the share. Yeah. Like share. Share of goodwill is raised, and it is not written off. and not written off. केस 1 में खाली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज किया लेकिन राइट ऑफ नहीं किया। Remember what is the entry in case 1? Goodwill to retiring partners capital. Goodwill to retiring partners capital. That's in front of you on the screen. Goodwill to retiring partners capital. Which goodwill? Total goodwill or share of goodwill? Share of goodwill. मतलब आप ऐसे बता रहे हो कि goodwill आया और retiring partner capital बढ़ गया. What is case 2 then? Share return off. Share raised and written. Share raised and written off. How many entries in case 2? 2 entries. What are the 2 entries? Goodwill to retiring partners capital and continuing partner capital. Continuing partner capital to goodwill. Perfect. Goodwill to retiring partner capital and continuing partner capital to goodwill. Is that clear? Goodwill to retiring partner capital and continuing partner capital to goodwill. Once again, which goodwill? Total or share? शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर भी शेयर, केस 1 और केस 2 एसएस था ना वहां पे एडमिशन में, शेयर एंड सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे जीएस है, तो एक तो शेयर ऑफ गुडविल लेना है और कौन सा रेशियो लेना है? गेन रेशियो। उधर सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ पे गेन रेशियो। ओके, तो यहाँ पे गेन रेशियो होगा और गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, तो होगा क्या, गुडविल गुडविल कट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये आपका नेट एंट्री है, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये आपको बताया था गुडविल में होता क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल कम होता है और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है। गुडविल में फंडा बहुत सिंपल है, कौन किसको गुडविल देगा ये समझ में अपने आप को समझा लो अच्छे से। हु इज गोइंग टू गिव द गुडविल शेयर टू हुम? The old partner. Old partners to the retiring partner. जो एग्जिस्टिंग है ओल्ड पार्टनर है टू द रिटायरिंग पार्टनर, वो लोग दे देंगे, बराबर है। तो ए और बी का कैपिटल कम हो जाएगा और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। बिजनेस को अभी ए बी को पैसा नहीं देना है, बिजनेस को अभी सी को पैसा देना है। दैट इज एक लायबिलिटी घटी, इंटरनल लायबिलिटी घटी और एक इंटरनल बढ़ी, घटी तो डेबिट बढ़ी तो क्रेडिट। ए कैप बी कैप टू सी कैप, नेट एंट्री यही होने वाली है, बट आपको नेट एंट्री नहीं करनी है, आपको 2 एंट्रीज करनी है।
case 1, case 2 हुआ clear? Goodwill to retiring and continuing to retiring, write off. Acha, case 3. What was case 3? Anyone remembers case 3? Total goodwill raised. Total goodwill raised. नाम में ही लिखा हुआ है total goodwill raised, total goodwill valued. Just like admission, okay? Total goodwill raised. How many entries in case 3? One entry. What is that one entry? Goodwill to partner. Goodwill to which partner? Retiring. Three partners. All the 3 partners. Goodwill to A, B, C. In which ratio? Old ratio. Old ratio. Total goodwill, old ratio. Okay. Ton tara. TON. Total goodwill and old ratio में raise करना है. Only one entry or 2 entries in case 3? One. What is the fourth case? Fourth case और third case में क्या फर्क है? Written off in future. Who will depreciate it? Who will write it down? Existing partners. Existing, the new partners. In which ratio? New ratio. NR, new ratio. Total goodwill को old में raise करना है. Total goodwill happened. Mega network connection is weak. No, only thoda it was went up the. I changed over to hotspot सब नहीं. पक्का चलेगा ना? हाँ चलेगा. So, total goodwill raised, goodwill to old partners, old ratio, and then continuing partners to goodwill in the new ratio. Continuing partners to goodwill in the new ratio. Okay. Keep that in mind. Case 3, case 4, total goodwill. Case 1, case 2, share of goodwill. Case 1, case 2, gain ratio. Case 3, case 4, old ratio and new ratio. Okay. And now will appear in the balance sheet. Case 1 and 3. Case 1 and 3. Case 1 and case 3. Admission में कौन से केस में appear होता था goodwill balance sheet में? Case 3. Case 3. क्यों case 1 और case 3 में यहाँ पे appear होगा balance sheet में? पहले कैश में देते थे तो वो उतना नहीं, नहीं यहाँ पर in retirement. Because it is just being. Because goodwill is raised. They are not writing raise off. raise मतलब increase किया है value, अभी तक write off नहीं किया, depreciate नहीं किया ना, that's why. So only raise किया, that's why it will appear in the balance sheet. Case 1 and case 3. Hope that's clear. Goodwill cases, all of you got that. बाकी meaning क्या है, fundamental concept क्या है, CA foundation में क्या use चारों cases है, इसका net result क्या होगा? Whether it is case 1, 2, 3 or 4. What is the net result? कैप डी कैप Continuing partner. Old partners capital to retiring partners capital. Yeah. Continuing partner, that is old partner to retiring partner. Okay. Share of goodwill will be adjusted. Share adjust होगा हमेशा. Net effect would be in share. Okay. So continuing to retiring, share of goodwill and gain ratio will automatically get adjusted in the gain ratio. Is that clear? Net effect यही है problems के साथ. Okay. जो कॉलम्स आप लोग ड्रॉ करते थे वही अकाउंट्स यहाँ पे भी ड्रॉ करने हैं. चलो सब लोग ड्रॉ कर लो फॉर सम नंबर 1. Asha, Bimal and Chandrika. Okay, same accounts will be drawing. Asha, Bimal and Chandrika. Sir, when the retiring partner goes, doesn't he take the capital along? बताता हूँ उसको कैसे पे करेंगे. Once you look at the sum, you will understand. जो भी रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट माइनस डेबिट है ना, वो बैलेंस नहीं होगा, सीधा टू बैंक पेड ऑफ. So which sum? फर्स्ट सम. आशा, बिमल एंड चंद्रिका. सर एडमिशन के जस्ट सेम ना, दो साइड उसके बाद पीछे वर्किंग नोट और जर्नल के लिए. सेम. दो साइड पे सम एंड दो साइड पे वर्किंग नोट और जर्नल. हर एक सम के लिए दो साइड छोड़ना है. दो फ्रंट साइड पे सम ड्रॉ करना है और बाद में वर्किंग नोट.
which you drew in admission. खाली यहाँ पे आपका नाम क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का नाम आफ्टर एडमिशन के जगह क्या लिखना होगा आपको, After retire. आफ्टर रिटायरमेंट. बैलेंस शीट का डेट क्या होने वाला है आपका, व्हाट विल बी द डेट ऑफ बैलेंस शीट, 1/8 1 अगस्त 2019. मुझे रिटायरमेंट भी कौन से दिन पे आप चाहोगे नॉर्मली हो, End of the year. एंड ऑफ द ईयर. ओके, जैसे एडमिशन इज अ वॉलंटरी थिंग, मर्जी से करने वाली चीज है, वैसे रिटायरमेंट भी वॉलंटरी है ना, मर्जी से ही हो रहा है. ओके, तो रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों कभी होने वाले हैं, ईयर एंड पे होने वाले हैं. तो आपका जो ईयर एंड पे बैलेंस शीट रेडी है, उसका नेक्स्ट डे पे आप बराबर से रिटायर करके एक दिन में सब निपटा के अपनी बैलेंस शीट बना दो, जैसे आप एडमिशन में करते थे. नहीं है कि वो ईयर एंड पे ही रिटायर हो, बीच में भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी. ओके, तो इनफैक्ट सीए इंटर वगैरह में आपको है ये चैप्टर्स में सम्स, जहाँ पे 6 महीने बाद रिटायर होता है, 3 महीने बाद रिटायर होता है. तो कुछ नहीं, हम लोग वहां तक का प्रॉफिट लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं, और 3 महीने बाद वाला जो प्रॉफिट लॉस है वो न्यू पार्टनर को दे देते हैं. तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व होता है वहां पे, जब वो साल के बीच में रिटायर होता है तब. यहाँ पर हमेशा वो साल के एंड में ही रिटायर होगा. ओके, जस्ट लाइक एडमिशन एंड रिटायरमेंट बोथ विल हैपन एट द एंड ऑफ द. So when the partner retires in the middle of the year, the value we'll take would be the difference of 6 months only, no, for that year. That will be the profit share. Profit share. No, for the revaluation, the time. Revaluation is not on monthly basis. Revaluation is on past 6, 7, 8 साल का जो वैल्यू बाकी था ना, वो सडनली आपने मार्केट वैल्यू पे लेके आया, तो वो एक साथ वो तो पूरा ही लेके जाएगा, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं. सिर्फ उस साल का. अभी ये देखो, ये बंदा अगस्त में रिटायर हो रहा है, योर ईयर इज फ्रॉम अगस्त टू जुलाई, तो अगर वो दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने का प्रॉफिट्स भी उसको मिलता है. दैट इज द मीन, अगर बीच में रिटायर हुआ. बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह एक साल का नतीजा नहीं है ना, तो 4, 5, 6 साल से जब से आपको एसेट रिवैल्यू करना था सब बाकी है, तो वो तो लमसम प्रॉफिट उसको देना ही है, वो तो मिलने ही वाला है. All of you draw the columns for first sum. Name of the accounts भी सब सेम है. पार्टनर्स का नाम है आशा, बिमल एंड चंद्रिका. तो इसमें जर्नल बनेगा. लेकिन ये सम में नहीं करना है, आगे वाले सम्स में मैं बताऊंगा. सर वो बैलेंस शीट के बाद चलेगा आफ्टर के, आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे आफ्टर एडमिशन लिखते थे ना. So here also it will be in the books of ... Yes, क्योंकि 4 accounts are of old books, balance sheet is of new partners. बाजू में रिवाइज लिखना जरूरी है. रिवाइज्ड, हाँ रिवाइज्ड मेंशन कर देना है. रिवाइज्ड आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें भी लिखते थे ना एडमिशन में भी हम रिवाइज मतलब आफ्टर चेंजेस. एक दिन 12 months का ही आएगा ना, लाइक बीच में नहीं होगा ना नहीं, रिटायर. एक हाथ सब मैंने डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा. बीच में भी रिटायरमेंट का मैंने डाला हुआ, तो हाउ टू डू दैट विल अंडरस्टैंड इट. बट बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द चैप्टर इज डेथ. डेथ और रिटायरमेंट में यही फर्क है कि डेथ तो कभी भी हो सकता है, रिटायरमेंट आप ईयर एंड पे करोगे, चलो वो तो वॉलंटरी थिंग है. ऐसा सोचोगे क्या मैं ईयर एंड पे मरूंगा, ईयर एंड पे ये पार्टनर मरेगा, इज दैट पॉसिबल? नो. तो डेथ कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो हाँ, डेथ और रिटायरमेंट में यही फर्क है, रिटायरमेंट एंड में होता है, डेथ मिडल में हो जाता है. बाकी वहां पर भी सब अकाउंट सेम है, रिवैल्यूएशन, कैश, गुडविल, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज सेम. खाली मिडल ऑफ द ईयर में होता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, जितना साल जितना महीना उसने काम किया. यहाँ पर वो स्टेप नहीं होता.
वो डेथ में हम लोग वैसे भी डिटेल में, डेथ में तो हर एक सम में ये स्टेप आएगा, रिटायरमेंट में भी हम लोग सीख लेंगे बीच में। चलो किया ड्रॉ आपने? मुझे बताओ, याद है आपको व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सम? Opening balances. ओपनिंग। मैं आपको बोल सकता हूं भले ये फर्स्ट सम है रिटायरमेंट का, ओके, लेकिन आप खुद से ये सम कर पाओगे। इमेजिन दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन तो स्टेप्स याद है ना, तो आप खुद से ही पूरा सम कर दोगे, खुद से ही आ जाएगा। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट सम, बट आई एम टेलिंग यू दैट। सी व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, यू ओनली टेल मी। Balances. Opening balances. Okay, look at the sum. Do you have cash or bank? Check. Bank. Cash at bank म्हणजे bank. ठीक है, तो लिख दो ओपनिंग बैलेंसेस। पहले बैंक में लिखो टू बैलेंस BD कितना है 48,000। गुडविल है क्या ऊपर बैलेंस शीट में? No. So go to capital, buy balance BD। तो कितने पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा अभी? 2 partners. All 3. All three. Now there are 3 old and 2 new. Okay, वहां पे 2 old थे इसलिए 2 का। क्वेश्चन देखो ना, बैलेंस शीट देखो, वहां पर ही लिखा हुआ है आशा, बिमल एंड चंद्रिका तीनों का, बीजल नहीं हो बिमल है, तीनों का बैलेंस शीट में कैपिटल है 35, 40 एंड 22। बीजल है ना? बिमल बीजल नहीं है, बिमल है। आशा, बिमल एंड चंद्रिका, नॉट विमल, बिमल। चलो, आशा, बिमल एंड चंद्रिका, बैलेंस लिखा तीनों का, बैंक बैलेंस लिखा, गुडविल है नहीं। व्हाट वाज योर स्टेप नंबर 2? यू ओनली टेल। General reserves. जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, होना चाहिए जनरल रिजर्व। All the 3 partners. All the 3 partners in which ratio? Old ratio. What is the old ratio? On top they have 1:1. So divide that general reserves between all the 3 partners. 311. That is 6,000, 2,000, 2,000. Is that correct? Right? अच्छा, reserves के साथ you need to take care of one more item. What was that? PNL. 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 Can you see PNL on the asset side? What are you supposed to do with that? Same distributed to all. Distribute, but on which side of capital? Debit side. Bit. What is that PNL? Accumulated profit or accumulated loss? Loss. Loss. क्या एसेट में मतलब वो लॉस है। इसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, तीनों को दे देना है 5,000, तो आपको कितना मिलेगा 3,000, 1,000 एंड 1,000। यहां तक गाड़ी सेम चल रही है, ओल्ड पार्टनर में रिजर्व दिया, ओल्ड पार्टनर में लॉसेस दिया। यहां तक समझ में आया आपको? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Goodwill. Usually it used to be what in admission? Capital. But do you have new partners capital over here? So let's move to goodwill. Which case of goodwill is there? You identify and tell me from this sum. Third case. Third case. All of you look at the sum and identify which case of goodwill do you Third have. case. Third case. Total Third debt. case. Third Only case. Why not 1 and 2? Because This share is total not is raised, mentioned. not to the शेयर का कभी मेंशन ही नहीं किया है, कुछ शेयर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। शेयर नहीं दिया है मतलब टोटल, ऑटोमेटिकली टोटल कुछ नहीं दिया मतलब टोटल गुडविल रेज दिया वैल्यू। हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 3? व्हाट इज दैट वन? Goodwill to old partners capital. Goodwill to old partner capital. Who are the old partner?
Asha, Bimal and Chandrika. Goodwill to Asha cap, goodwill to Bimal cap, goodwill to Chandrika cap. Which goodwill total? वो तो है अपने पास. Which ratio? Old. Old ratio. Old ratio. Old ratio. बराबर है? Old ratio. So what is your old ratio? 3:1:1. So divide 15,000 between 311. How much do you get? 15,000 को 3:1:1 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 9,000, 3,000 and 3,000. Is that right? बराबर है? Okay. What is the corresponding entry? Goodwill में 2 old partners. तो old partners में क्या दिखेगा? Buy good. Buy goodwill. Is that clear? Goodwill में 2 old partner में buy goodwill. All of you got that? कुछ करना है? Write off करना है? Write off? Are we supposed to write off? No. No. Case, It will appear in the capital balance sheet also, no? Asset. it will appear. Yes, it will appear. Balance आएगा ना तो balance sheet में जाएगा as an asset. कि अभी तक write off नहीं है. बराबर है. Perfect. What about step 5 after goodwill? What was step 5? Evaluate the assets and liabilities. So check about revaluation. Vatsal said इधर लिखा है पढ़ो. Building appreciated by 8,000. Vatsal Mehta, sorry. Building appreciated by 8,000. Building कितना था? 28 था. उसको क्या किया? 8,000 से बढ़ा दिया. तो प्लस रिवैल 8,000. ये कितना हो जाएगा? 36. What is the second? Revaluation credit side. Buy building 8,000. Okay. Same कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं. Plant and machinery depreciated by 5,000. What is the book value of plant? 21,000. Depreciated by 5,000. Revalued 5 से कम किया, you get 16,000. ये लॉस हो गया तो 2 plant and machine 5,000. बराबर है? RDD is to be created on debtors. Was there any original RDD? No. So debtors were 20,000 less RDD. That makes it 18. ये भी लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया. कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, सब सेम कर रहा हूं एडमिशन में जो कर रहा है. Of the sundry creditors, 3,000 are not payable. Is it a gain or a loss? Gain. It's a gain, right? Liability कम हो गया. Okay. ये जाएगा आपका रिवैल में क्रेडिट. All of you are getting that? Same steps, same entries, except for goodwill. Okay. Goodwill में भी वही था, खाली old partner 3 हो गए. Goodwill to old partner, old ratio, third case था. Goodwill देख लिया हमने. Sum is over. You can calculate your profit or loss. क्या आ रहा है पढ़ो यहाँ पे. What are you getting? Profit or loss? Profit. यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज है. You have to use common sense and tell me. Who will you distribute this profit between? All partners. Old partners. Old partners partners म्हणजे
only 2 partners or all the 3 partners? All three. All three. All three. All 3 partners. Why all the 3 partners? Simple common sense, because all the 3 of them were working in the business since last 8-10 years. So whatever the revaluation of assets or liabilities ka gain or loss belongs to everyone, including the retiring partner. Everyone should get it. यहाँ पे चेक करते हैं. पहली मिस्टेक गुडविल में होती है, मैंने बताया आपको. दूसरी मिस्टेक यहाँ पे होती है, क्योंकि एडमिशन किया होता है तो घूम रहा होता है चक्कर दिमाग में, एडमिशन एडमिशन एडमिशन. वहां पे 2 में करते थे तो यहाँ पर भी 2 में कर देते, या फिर एडमिशन रिटायरमेंट की भेलपुरी बन जाती है तो एडमिशन में तीनों को दे देते हैं. ऐसा होता है. ओके, दिस सिली मिस्टेक हैज हैपेंड विद द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. Stay with common sense. Okay, problem will take care of itself. लॉजिक के साथ रहो, प्रॉब्लम अपने आप होने वाला है आपका. करेक्ट. Sir, but in admission we get old ratios of only 2 partners, not of the third partner, and in this we get old ratio of all the 3 partners. ऑल द 3 पार्टनर. वो भी एक बड़ा सा हिंट है. फिर भी वहां पे लोचे में वहां पे न्यू रेशियो में कर देते हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर को दे देते हैं. होता है ये मिस्टेक. ओके, so you don't do that. You think logically and proceed ahead. Okay, पुराना पार्टनर है, पुराना रिजर्व, पुराना लॉसेस, पुराना रिवैल सबको बिलोंग करता है. So 2 partners capital, all the 3 partners, Asha cap, Bimal cap and Chandrika cap. What is 1:1? करो डिवाइड, कितना आता है ये? 2400, 800. 2400, 800, 800. रिवैल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंट्री. बाय रिवैल 2400, 800, 800. अब आता है बंद करने का बारी. Proportionate capital adjustment in the sum, please check. Got any proportionate capital adjustment in the problem? Nothing, right? So you can close down your partner's capital account. मुझे बताओ, will you write sub में 2 balance CD? Only 2. Only 2. कौन किसके अकाउंट में लिखना है 2 balance CD? Asha and Bimal. Continuing Asha partners. and Bimal. What about Chandrika? Will you write 2 balance CD in Chandrika also? No. No, payoff. Why payoff? Because Chandrika is Retiring. retiring. उसका बैलेंस रख के क्या मतलब है? उसका भी बैलेंस कर दोगे तो मतलब वो भी आ रही है बिजनेस में. No, she is leaving the business. So सबसे पहले यहाँ पे जाके पॉइंट अलग हो रहा है, ध्यान से देखना. तीनों का बैलेंस मत करना डायरेक्टली, पहले चंद्रिका को बैलेंस करना. चंद्रिका का डिफरेंस देखो, क्रेडिट माइनस डेबिट कितना है. 23,800. टोटल कितना है? 24,800. नहीं, 25, 27, 800. So already total is 27,800. 27,800 is the total. Minus 1,000. 26,800. Is that correct? 26,800. 27,800 minus 1,000 is 26,800. ये क्या है? इसका मतलब समझो. चंद्रिका का कैपिटल जहां जहां क्रेडिट हुआ है उसका मतलब क्या है? बिजनेस हैज टू पे हर दैट मच. और जहां जहां डेबिट हुआ है मतलब उससे उतना लेना बाकी है. तो ये देखो, उसका कैपिटल का बैलेंस 22,000 दिख रहा है, ये देना बाकी है. जनरल रिजर्व का शेयर 2,000, ये देना बाकी है. गुडविल का शेयर 3,000, ये देना बाकी है. रिवाल का प्रॉफिट का शेयर 800, ये देना बाकी है. माइनस ये लॉस, ये लेना बाकी था क्योंकि वजह से ये लेना बाकी था. तो नेट कितना देना बाकी है? हाउ मच नेट आर वी सपोज टू पे टू चंद्रिका? 26,800. 26,800. अभी क्वेश्चन में पढ़ो, कुछ दिया है. हाउ आर यू Cash. दिया हुआ है. इज इट स्पेसिफाइड? Yes, cash. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Prepare the necessary ledger account assuming that the retiring partner is paid off in cash. मिला?
कभी कभी कैश के जगह वो लोग ये पैसा लोन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन में मतलब ताबड़तोड़ पे ऑफ नहीं करोगे, पेंडिंग रखोगे और वो लोन पे भी 6% इंटरेस्ट देते रहोगे अगर कुछ नहीं दिया है तो समझो। ओके, वो अभी नहीं देंगे, आने वाले सालों में देंगे। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए और आप उसको ताबड़तोड़ पैसा नहीं देते तो उसको लोन में डाल रहे हो, तो वो लोन पे भी अगर आपने डिसाइड नहीं किया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6% से देना पड़ेगा। तो वो लोन में भी डाल सकते हो और कैश में से भी पे ऑफ कर सकते हो। इज दिस क्लियर? जब आप कैश में पे ऑफ करते हो ना, उसको बोलते हैं लंप वर्ड, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जब आप रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा ताबड़तोड़ दे देते हो ना, ताबड़तोड़ जैसे ये सम में दे रहे हैं, उसको बोलते हैं लंप सम मेथड। क्या बोलते हैं बोलो मेरे को? लंप सम मेथड। लंप सम मतलब एक साथ पूरा पे ऑफ कर दिया। अगर हम उसको लोन में रख के थोड़ा थोड़ा पे ऑफ करते हैं, लोन में रख के थोड़ा थोड़ा पे ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टॉलमेंट मेथड। तो लमसम का मतलब पूरा कैश में दे दिया, इंस्टॉलमेंट का मतलब अभी लोन में डाला, लोन जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी और फिर आने वाले सालों में थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पे ऑफ करते। इसलिए तो रिटायरिंग पार्टनर को सेटल करने के दो तरीके होते हैं। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। रिटायरिंग पार्टनर को सेटल करने के दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? नाम बताओ मेरे को। Lump sum method. Lump sum method and installment. Pay the whole cash together. पूरा कैश साथ में पे कर देने का। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉलमेंट? We Pay the cash in installment. installment. As a loan. अभी किधर डालने का? अभी Lump sum लोन में। अभी लोन में टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। लोन किधर दिखेगा? बिजनेस का एसेट में कि लायबिलिटी में? liability. देना बाकी है और थोड़ा थोड़ा करके चुकाओगे, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? इज दैट क्लियर? दैट इज द ओनली डिफरेंट एलिमेंट। तो ये रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे ऑफ करना है तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? टू लोन लिखूं कि टू कैश और बैंक? क्या है यहाँ पे? Cash. कैश की जगह बैंक, टू बैंक अकाउंट। ओके, दिस इज सेटल्ड। रिटायरिंग पार्टनर सेटल्ड। अच्छा, पार्टनर कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? By partners. कैपिटल। याद है वो पहला एंट्री बैंक टू कैपिटल जब भी लाता था बिजनेस में? सर पर कैश है ना, वो कैश हो कि बैंक हो, सब कॉमन अकाउंट में लिखने का, अलग नहीं बना। समझा? बैंक है सब में तो बैंक में करो सब, कैश है सब में तो सब कुछ कैश में। सर इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगा? आ सकता है, लेकिन दो पार्टनर का ही आएगा प्रोपोर्शनेट। तीसरा तो रिटायर होगा, दो के बीच में। तो उसमें बेस किसका लेने हैं? टोटल कैपिटल दे दिया होगा। आशा और बिमल का टोटल दे देगा 1 लाख, उसको करो डिवाइड इन द न्यू रेशियो। यहाँ पे 3:1, 75-25, वो बैलेंस में लिखो और बाकी सरप्लस और डेफिसिट। टोटल कैपिटल देंगे। मैं आता हूँ, वो वाले भी समझ करेंगे हम लोग। ये वाला एंट्री समझा पहले आपको? जब पार्टनर कैपिटल लाता था तभी बैंक टू कैपिटल, अभी लेके जा रहा है तभी कैपिटल टू बैंक। समान सब कुछ मिल गया उसको, कैपिटल मिल गया, शेयर ऑफ रिजर्व मिल गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया, शेयर ऑफ रिवैल मिल गया, शेयर ऑफ गुडविल मिल गया, सब लेके लॉस माइनस करके उसको पे ऑफ कर दिया। तो चंद्रिका कैपिटल टू बैंक, बैंक में बाय चंद्रिका कैपिटल 26,800। सर इसमें करंट होगा तो करंट भी कैसे होगा करंट? करंट किसका होता है? कंटिन्यूइंग पार्ट। इस चंद्रिका कंटिन्यूइंग इन द बिजनेस? दूसरा करंट बनेगा ही नहीं। बनेगा। कैश और loan। खाली कैश और लोन ही होएगा, करंट हो ही नहीं सकता। बोल। So when Chandrika when the partner goes away, can the partner make such a provision that even though he is out of the business, but he still gets some amount as that thing since he was the part of the business for so long? वो तो उसको दे दिया ना गुडविल का हिस्सा, वही तो उसका सो लॉन्ग का हिस्सा है गुडविल। गुडविल क्या है? आने वाले 2-3 साल का प्रॉफिट का हिस्सा, वो अभी से हमने उसको दे दिया। बाकी अब वो काम करेगी तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगी तो बैठे बैठे थोड़ी मिलेगा उसको।
पूरा लाइफ। सर हाँ, अगर उसका पैसा आप लोन के जैसा रख रहे हो तो 6% ब्याज मिलेगा उसको, बट और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। वो एक्स्ट्रा जो भी था ना वो गुडविल के फॉर्म में दे दिया, मेहनत थी, आगे 2-3 साल का प्रॉफिट का शेयर उसको अभी से दे दिया। सर अगर बैलेंस शीट में करंट दिया है तो उसको भी हम लोग ऐसे सेटल करेंगे ना कैश से। बैलेंस शीट में करंट दिया है तो मैं बताता हूँ कैसे करने का। जो रिटायरिंग पार्टनर का करंट होगा ना उसको कैपिटल में डाल देने का पहले, फिर कैपिटल को कैश या लोन के थ्रू करने का, तो दोनों मिला के सेटल करते हैं, अलग अलग नहीं। करंट को डाल देना है कैपिटल में और कैपिटल। अभी बंद करते हैं आशा और बिमल को। आशा और बिमल का नॉर्मल बैलेंस करो, कितना होता है ये? 52,400, 59,400. 59, हाँ सर 49. 52 ना, 52,400, sir. 400, 45,800. 45,800, And what is the balance? 49,400. Sorry, 49,400. अच्छा बैलेंस बोल रहे थे 49,400 and 44,800. 44,800. अभी कितना लोग का बैलेंस शीट बनेगा बोलो मेरे को? Only 2. थे, वहां से 3 का बैलेंस शीट बना, इधर 3 थे, यहाँ से 2 का बैलेंस शीट बराबर है। 2 का ही बैलेंस शीट बनेगा। So this is Asha Capital and this is Bimal Capital. 49,400 and 44,800. कितना आता है ये टोटल? 94. ओके, नाउ बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है जैसे आप एडमिशन में करते थे, छापो छापो छापो। सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, बिल्डिंग लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, सन्ड्री डेटर्स लिख दिया, स्टॉक नहीं लिखा है, स्टॉक वैसे का वैसा लिख दो, आफ्टर रिटायरमेंट भी सेम ही है। बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? व्हाट्स योर बैंक बैलेंस? 21,200. लेके जाओ आपके बैलेंस शीट में, बैंक बैलेंस 21,200। ओके, गुडविल आएगा कि नहीं बैलेंस शीट में? थिंक एंड टेल मी, विल यू हैव गुडविल इन द बैलेंस? Yes. 110%. व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट येट रिटर्न इट ऑफ। कितना आएगा गुडविल? 15,000। बैलेंस है तो गुडविल है, बैलेंस नहीं है तो गुडविल नहीं। गुडविल 15,000 क्यों दिखा बैलेंस शीट में? या अभी तक Right now. who will write off this goodwill in the coming years? Asha and Asha and Bimal. In which ratio? New ratio. New ratio. New ratio. याद है ये कभी कभी गुडविल आती थी आपके बैलेंस शीट में एडमिशन के वक्त, दो पार्टनर के बीच में। ये वो वाली है। ओके, दिस इज अ प्रीक्वल, दैट वाज अ सीक्वल। एडमिशन में वो बैलेंस शीट वाली गुडविल हम लोग राइट ऑफ करते थे बिटवीन ओल्ड पार्टनर, और फिर नया पार्टनर को एडमिट करते थे। वो आती कहां से थी? वो यहां से आ सकती, दिख रहा है? यहाँ दिख गई बैलेंस शीट में, फिर दो पार्टनर उसको राइट ऑफ करें। Sir, is my video visible? यस यस, Okay, sir. ओके। नाउ कम टू योर लायबिलिटी साइड। पीएनएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल लिख दिया, चंद्रिका को सेटल कर दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रेडिटर्स लिख दिया, बिल्स पेएबल नहीं लिखा। राइट डाउन बिल्स पेएबल कितना है? इट शुड टैली, बैलेंस शीट शुड टैली। देखो 1,2,1,2,0,0. 100। Yeah, One- 1,2,1,2,0,0. 121200 121200। कैसा लगा? इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? Cakewalk. Easy. Cakewalk. If you know admission, it's a cakewalk. Okay, if you know admission, it's a cakewalk. All of you got that? If Chandrika comes into the business and if there's a certain asset that she brought, मतलब building है, तो वो building लेकर आए, तो when she retires, we give the asset back to her as well, huh?
उसको कैश दे दिया है ना, जो भी एसेट वो लाई थी वो कैपिटल की तरफ लाई थी, तो कैश लाती वो भी कैपिटल की तरफ लाती। गॉट इट? तो वापस जाते वक्त मेरा बिल्डिंग नहीं, वो बिल्डिंग पार्टनरशिप का है। तो जाते वक्त डिसाइड हुआ है कि उसको बिल्डिंग देना है, फर्नीचर देना है, तो वैसे पे कर सकते हो। एसेट के प्रोपोर्शन का कैश उसको वैसे ही मिल रहा है ना। बिल्डिंग 1 लाख की थी, उसके सामने उसको कैश 1 लाख का वही मिलेगा, जरूरी नहीं है एसेट। जो भी उसका कैपिटल में पैसा है वो इधर कैश, फर्नीचर, काइंड, बिल्डिंग, एनीवे यू कैन से। वैल्यू तो मिल रही है ना, वैल्यू से मतलब है आपको बिल्डिंग मिले कि कैश मिले कि फर्नीचर मिले, व्हाट डज इट, बट इट डजंट मैटर इफ शी इज गेटिंग द सेम एसेट। उसका सेम एसेट वो तो पार्टनरशिप का होगा। रिटायरमेंट के वक्त दे कैन डिसाइड इतना अमाउंट ये मिलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो उसका कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट गुडविल, प्रोपोर्शनेट रिवैल, माइनस लॉस, ड्रॉइंग्स, सब मिला के नेट अमाउंट उसको दे दे। कैश में भी दे सकते हैं, कोई दूसरे फॉर्म के एसेट में भी दे सकते हैं, मिलेगा। But if the partner have a good relation, then Chandrika can request them like, please pay me in cash because I have like maybe she has some They financial will pay crisis. in cash only. 99% the settlement is done in cash only. In kind, it is rarely it is going to happen in kind. Mostly it is in cash. इस सम का जर्नल नहीं है, नेक्स्ट सम ड्रॉ कर लो। नो जर्नल इन दिस सम। सर नेक्स्ट सम का जर्नल है क्या? नहीं, नेक्स्ट सम में भी जर्नल, सर सेकंड सम ही लेना ना। सेकंड सम लेना है। कौन सा सम करना है सर? सम नंबर 2 वी आर डूइंग। हाँ बोलो। To leave only one page for journal, right? ये सम में नहीं छोड़ोगे साइड्स तो चलेगा, ये सम में कुछ था ही नहीं, जर्नल भी नहीं है, तो वेरी नेक्स्ट 2 साइड्स यू कैन ड्रॉ। आने वाले दिनों में अभी सम का जैसा ड्रॉ करते थे ना कॉलम एडमिशन का, 3 सम का ड्रॉ करके रखने का और 4 सम का ड्रॉ करके रखना। फॉर रिटायरमेंट 4 सम का ड्रॉ करके रखना, 4 सम का ड्रॉ करके रखना और हर एक सम के बाद 2 साइड छोड़ के रखना। एवरी सम के बाद लीव 2 साइड। ओके, 2 साइड सम, 2 साइड ब्लैंक, 2 साइड सम, 2 साइड ब्लैंक, 2 साइड सम, 2 साइड ब्लैंक। 4 सम्स का रेडी रखना कॉलम। So instead of RDD, we can write NRDD. Yeah. RDD, NRDD is same. RDD, NRDD is same. अभी क्रिएट किया हुआ है ना फाइनल अकाउंट्स के दिन पे, एक दिन पहले। NRDD है वो, बराबर। सर बोर्ड्स में कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स सम इट इज। ओके सर सेकंड सम, second sum we are doing, sum number 2. Sum number 2 we are doing. Just make a correction in the sum. Cash in hand दिया ना 8,500, just make it bank. Cash in hand को just make it bank balance. Yes, what? Sir, if the retiring partner knows that they're going to repay him through a loan, then can't he take over liabilities so that they'll have to pay more interest? Doesn't make sense. If he's taking over that liability, he has to recover the money. He has to pay to those liabilities, na, as it is. Yeah, but sir, still he'll get. But that should be agreeable to every partner. वो सब लोग पार्टनर्स अग्री करता है, उसको लोन में देना वो भी सबको अग्रीएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली एग्जिस्टिंग अग्री किया, खुद को भी अग्री करना जरूरी है। लोन में मिला तो व्हाट इफ ही हैज गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, ही कैन इन्वेस्ट दैट मनी एंड अर्न मोर इंटरेस्ट। लोन पे तो उसको 6% मिलेगा, बिजनेस में वो इन्वेस्ट करके 12-13% कमा सकता है। सो लोन में पहले सेकंड सम आ गया 26 सम। सेकंड सम
तो लोन में लेना और देना जनरली प्रेफरेबल नहीं होता है फॉर रिटायरिंग पार्टनर. बिजनेस का फायदा हो रहा है वहां पे. ओके, बाकी लाइबिलिटी टेक ओवर करना है करो. ओके, कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द agreement between the parties. You can do that. But Okay, no, I didn't understand. हो सके तो majority of the business tries to settle in cash. Yeah. I didn't understand how do they pay him loan? Matlab, why do they want to keep him as a liability and he's retiring? Because it's good for the business. Old partner के लिए अच्छा है वो, क्योंकि तुम रिटायर हो रही हो, तुमको हमें 50,000 देना है समझो, हम तुमको लोन में रख देंगे और उस पे 6% इंटरेस्ट देंगे, तो हमारा कैश रह गया ना बिजनेस में. We did not give you that cash, and with that cash we can do more business. This will give you a return of 15-20% per year, और हमें तुमको खाली 6% देना है. So with that cash which is there in the business, more money, and we can still give you that 6% ka interest, and partly we can pay off your loan also, because loan ka interest is very less. Partners loan ka interest is very less compared to normal loans. Okay, so that's an advantage for the business. इसलिए वो retiring partner बोलेगा मेरे को कैश में ही दो, मेरे को लोन में मत दो, ऐसा रहता है. So like Even in the problems, if nothing is specified, कैश या लोन, क्या अज्यूम करने का? कैश या लोन, प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करने का? कैश. लो दो, खत्म करो. ओके, लोन का झंझट नहीं करना. यस कितना? So, but if the business becomes insolvent, like business चल नहीं रहा है, so then what will happen to the loan? Like they just say we are not able to pay. Then तो भगवान भरोसे, that loan is also भगवान भरोसे. Okay, insolvent हो गया तो फिर you have to follow that procedure. External liabilities you need to pay off first, and then creditors, bills payable, everyone, then government dues, taxes, then outstanding expenses of employees, then comes the part of partners loan. Internal है ना, तो लास्ट में आता है, और उसके बाद कैपिटल. तो वहां तक पहुंचते पहुंचते पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो चला गया तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा ना, इंटरनल थोड़ी होगा. नहीं, एक्सटर्नल इन द सेंस कैसा है, वो स्टिल अ पार्टनर ओनली ना, रिटायर हो चुका है, बट वो था किसका? पार्टनर का ही लोन था. तो स्टिल इन पार्टनरशिप एक्ट इट इज कंसिडर्ड एज, भले रिटायर्ड पार्टनर का लोन है तो वो रिटायर्ड पार्टनर ही, वैसा कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है जिसपे सिक्योरिटी लेके बैंक लोन लिया हो, वैसा लोन नहीं. तो जब भी लोन की कैटेगरी में भी आप पे ऑफ करोगे, एक्सटर्नल बाकी सबको पे ऑफ करने के बाद लास्ट में इसका नंबर आता है, भले ही इंटरनल पार्टनर हो तभी लोन लिया हो कि रिटायर्ड पार्टनर, ऑर्डर में वो बाद में ही आता है. So is there like an agreement that they get the retiring partner to sign if they want to pay him loan? Because I will agree to. लोन नहीं पे करेंगे. नहीं, मतलब उनको अगर लोन में पे करना है, so they will get the retiring partner to sign some agreement that I agree. हाँ, लोन अग्रीमेंट बनेगा ना दोनों के बीच, वो तो होने ही वाला है, वो तो लीगल ही है. नहीं पे किया तो कोर्ट वोट में घसीटेगा, बराबर. सर सर जस्ट लाइक इन गुडविल कोई अंडर द टेबल डील हो सकता है, लाइक प्राइवेट डील यू पे? यहाँ पे हो सकता है प्राइवेट डील, प्राइवेटली कैश दे दिया तो बुक्स में एंट्री नहीं दिखेगा तुमको गुडविल. तो उस कैपिटल को कैसे निकालने का? कैपिटल पूरा दे देने का ना, और प्राइवेटली उसको गुडविल का कैश दे देने का 2,000. यहाँ पे कैपिटल, हाँ कैपिटल है ना, इसमें खाली गुडविल का एंट्री नहीं दिखेगा. 3,000 है ना, उसको प्राइवेटली मिल जाएगा, बाकी सब तो देना है ना. आई एम टेलिंग कि पूरा अमाउंट लाइक द 26,800 वो सब बाहर से दे सकता है? नहीं वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है भाई, बुक्स में रिकॉर्डेड है. जो रिकॉर्ड हो चुका है वो वाइट, वो बाहर से दे नहीं सकता है. गुडविल तुम अभी रेस करके राइट ऑफ कर रहा है ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो पहले से रिकॉर्डेड नहीं था, वो तुम बाहर से कैश में दे सकते. ये तो सब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बुक्स में अकाउंट बना हुआ है, वो तो जो व्हाइट है रिकॉर्डेड है, उसको तो वो बुक्स में से ही व्हाइट में से ही देना पड़ेगा. तो ये लीगल नहीं है क्या? ये लीगल है. नहीं, द कैश पेमेंट भी लीगल है प्रोवाइडेड ही रिकॉर्ड्स एंड शोज एट इन हिज बुक्स एज अदर इनकम. अगर वो नहीं दिखाता है कैश इनकम अदर इनकम में, तो फिर इट इज इलीगल. कैश में होना दैट डजंट मीन इलीगल.
कैश इनकम तुम्हें बुक्स में रिकॉर्ड करके उस पर टैक्स भरने का, टैक्स भर दिया तो वो भी लीगल। अगर तुम इवेड कर रहे हो, बुक्स में दिखा ही नहीं रहे हो, इन्होंने प्राइवेटली दिया ए और बी ने बताया खुद का बुक्स में एक्सपेंस या वॉट एवर इट इज, बी का बुक्स में जो नया पार्टनर है उसका बुक में इनकम दिख ही नहीं रहा है, तो फिर इट इज इलीगल। तो बुक्स में दिखाओ, व्हाइट में दिखाओ, कैश हो चाहे चेक हो, तो फिर इट्स लीगल, नो प्रॉब्लम। नाउ come back to your second sum. Who are the partners? Tell me, who are the partners in sum number 2? ABC. ABC are the partners. What will be the date of balance sheet? 31st December 2010. 31st December 2000. Yeah. वो तो गया ना उस दिन पे, तो हमारा डेट क्या हो? 1/1/11। आफ्टर क्या करने का? आफ्टर रिटायरमेंट, revised balance sheet after retirement. Is that right? So, Come to, हाँ बोलो. I'm logging through different accounts. Yeah, I got it. I allowed it. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, half, and 1/6. How will you make them common? 1/3, half, and 1/6. Multiply by 6. Multiply. LCM. 3:1. 2:3:1. याद रखना, ओल्ड रेशियो 2:3:1 है, ठीक है। अभी कैश है कि बैंक है? बैंक है, सब में कैश नहीं है, बैंक है। मेक दैट करेक्शन। स्टेप नंबर 1, फटाफट बोलो मुझे, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? Balances. And then general reserve. सबसे पहला बैलेंस, बैंक बैलेंस लिख लो। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस? 8500। गुडविल तो है नहीं बैलेंस शीट में, तो छोड़ दो। कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिख दो। बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा? 30, 40 and 25। Do you have reserves? Step number 2, do you have reserves? Yes. जनरल रिजर्व है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व? Who will you distribute this general reserve? Partners. All three. 15,000 in the old ratio, that is 2:3:1. कितना आता है देखो? 2,500, 7,000. 4,500, 7,500 and 3,000। बराबर है? नहीं, 2,500. 2,500. 2:3:1 है ना? 15,000 को कितना होता है? 5,000, 7,500, 2,500. बराबर। 5,7,500 and 2,500। लॉसेस कुछ नहीं है। गो टू कैपिटल। डू यू हैव एनी न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन रिटायरमेंट? नो, न्यू पार्टनर है ही नहीं, तो काय का कैपिटल। मूव टू गुडविल। चेक एंड टेल मी इन द सम व्हिच केस ऑफ गुडविल इट इज। 1, 2, 3, 4। 4. 4. Fourth case, is that right? Fourth case, are you sure? Yes. पक्का fourth case? Why fourth case? Raised or written off bonus. Raised भी और written off भी है। Can you see that? First line पे दिया है goodwill account is raised 24,000. Last line पे दिया है goodwill is to be written off. How many entries in case 4? 2. Why not 1 and 2? Why not 2? 2 में भी write off है। Total good. Total है ना? Share दिया है तो ही 1 और 2. Okay. अच्छा, how many entries in case 4? 2. 2 entry. What are the 2 entries? Number 1. बोलो। Goodwill to A cap, B cap to C cap.
Goodwill to old partner, goodwill to A cap, to B cap, to C cap, goodwill to old partner, which ratio? Old ratio. Old Which ratio. old ratio? 2:3:1. करो 24,000 को 2:3:1 में. 8,000, 12,000, 4,000. 8,000, 12,000, 4,000. मिला ये सबको? What is the corresponding entry? Goodwill में 2 old partner, तो old partner में buy goodwill. Is that right? 2 old partner में buy goodwill, sorted. What is the second entry? A cap, B cap to goodwill. Who will write off? A cap, B cap to goodwill. Who will write off? Existing partners. Existing partner, new partner. In which ratio? New ratio. What is the new ratio in the sum? 2:3. 2:3. Why 2:3? Gain ratio. क्या gain ratio? Same ही होगा old ratio. gain It is ratio. just remove the one that is left. Remove the one. To NR. NR is also 2:3. GR is also 2:3. Is that clear? जो निकल गया उसको हटा दो. तो अभी एंट्री बोल मुझे. एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल. Come on. Buy A's capital by B. Buy A's capital by B. A cap, B cap, 2 goodwill. तो पहले पार्टनर कैपिटल में लिख दो 2 goodwill. A cap, B cap में 2 goodwill. New ratio. What is the new ratio? 2:3. करो डिवाइड. 24,000 को 2:3 में करो डिवाइड. कितना आता है? 24,000 in the ratio of 2:3. Five. 9,600 and 14,400. 9. Is that right? गेन 3 का, लॉस 2 का. आया गुडविल तभी 3 का फायदा, गया तभी 2 का नुकसान. ऑटोमेटिकली ए और बी का कम हो गया कैपिटल और सी को मिल गया. बराबर है. अब बताओ मेरे को करस्पॉन्डिंग एंट्री किधर जाएगी? पार्टनर कैपिटल में 2 गुडविल, तो गुडविल में क्या आएगा? Capital capital. बाय ए कैप बाय बी कैप. By A cap, by B cap, that's 9,600 and 14,400. मुझे बताओ सोच के, will your goodwill appear in the balance sheet now? No. It is written off. It is written off. Raise भी किया और write off भी किया. 2 entries, goodwill to old partner and continuing partner to goodwill. New ratio. No goodwill in the balance sheet. Goodwill का काम तमाम. Done. Is it clear? What next? Revaluation पढ़ो क्या दिया है? Plant and machinery to be depreciated by 10%, furniture by 5%. So plant and machine, that's 40,000. So 10% से कम करो. That's 4,000. Get 36. Second effect. हाँ, रिवैल लिखो, डेप्री लिखो, चलता है दोनों. डेप्री भी लिख सकते. 2 plant and machine, that's 4,000. Then furniture by 5%, that is 10,000. लेस रिवैल लिखो, डेप्री लिखो, एक ही बात है. That's 500. इधर आ जाएगा 2 furniture. Then stock to be appreciated by 15%, building by 10%. So stock is increasing in the value. So plus revalued by 15%. That's, I think, 3750. So 28,750. ये हो गया buy stock. 3750.
and building by 10%, so factory building was 50,000. सर वो स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन लिख सकते हैं लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया वो भी लिख सकते हो, या फिर सबके लिए कॉमन दोनों राइट है, या फिर ये नहीं दिखाओगे और डायरेक्टली आउटर कॉलम में नेट वैल्यू दिखा दोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको बताया था ये कुछ मत दिखाओ, ये दिखाओ ही मत, डायरेक्टली आउटर कॉलम तो भी चलेगा। ओके, so this is by factory building, that is 5,000. Then reserve for doubtful debts to be raised to 2,000. Was there any original RDD in the sum? Check. Yes. So Yeah, in original balance RDD. sheet we'll write 1,500. 500 No, था, no, no, not in balance sheet. Sorry, revaluation. ओरिजिनली 500 था, इधर 2000 लिख देंगे, इधर 2000 लिख देंगे बैलेंस शीट में, अभी 2000 करना है, तो रिवाल में कितना जाएगा? 1,500. 1500, ओनली 1500 से आरडीडी बढ़ा ना, इट्स अ लॉस, 1500 का लॉस, 500 था उसका 2000 बनाया तो 1500 का लॉस, लायबिलिटी बढ़ा, आरडीडी इज अ लायबिलिटी, बढ़ा तो लॉस, खत्म। और सर ये वाले में न्यू रेशियो वी डोंट हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। ये कोई जरूरत ही नहीं है, क्या बनाओगे इसमें तुम? No, I'm asking because do we have to store it anywhere in the ना, इसमें कुछ है ही नहीं, नो नीड ऑफ एनी वर्किंग नोट फॉर रेशियोज। खाली हाँ ओल्ड और न्यू दिया है तो गेन रेशियो बताना, न्यू माइनस ओल्ड तो बताना, अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज सीधा वो जो गया उसको हटाओ, सीधा 2:3, दैट्स योर न्यू रेशियो, नो नीड टू शो इट ऑल्सो। कितना आ रहा है ये टोटल? 8,750. प्रॉफिट आ रहा है ना, किसको जाएगा ये प्रॉफिट बताओ? 2,750 is the balance. 2750 बराबर, और प्रॉफिट है किसको जाएगा? ओनली ए एंड बी और एबीसी ऑल द थ्री? All three. ABC all three. ऑल थ्री, ए कैप बी कैप सी कैप, करो डिवाइड, 2:3:1 ओल्ड रेशियो, कितना आ रहा है? चेक 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 चेक। So A is 917. 917, Yeah. B is 1375. And C is 458. 458, चेक करो बराबर से, टू पार्टनर कैपिटल में बाय रिवैल 917 1375 458, गेट योर। सबसे पहला किसका अकाउंट बंद करना है अभी मुझे बताओ? Old partner. C. The सी retirement. सी सी सबसे पहला रिटायरिंग को बंद करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन में पढ़ो, कुछ दिया है रिटायरमेंट को कैश दे रहे हो, लोन में डाल रहे हो, कुछ दिया है? क्वेश्चन पढ़ो, रीड 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 रीड। No, so we'll assume it's cash. We'll assume it's cash, तो करो क्रेडिट माइनस 31,500, 31,958 आ रहा है, 31,958, क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी लिखूं क्या रिटायरिंग में? Should I write to balance CD in retiring partner? To bank. Why to bank? कुछ नहीं दिया तो पे ऑफ, कितना पे ऑफ? क्रेडिट माइनस डेबिट में कुछ है ही नहीं, 31,958। इसमें क्या क्या हुआ? सब मिल गया उसको, 25 मिला टोटल का, 2500 रिजर्व का, 4000 गुडविल का, 458 तुम्हारा रिवाल का, सब मिला के 31,958। इज दैट क्लियर? 31,958। और इसमें बैंक का बैलेंस कम है तो ये इतना ओवरड्राफ्ट, तो फिर अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो लोन में ही डालना है ना? वैसे ही करते हो, इवन इन CA फाउंडेशन यू डू दैट वे। इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी इन कैश और बैंक, you transfer it to loan, or if you have sufficient money then you pay off.
12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है. 12th स्टैंडर्ड में जितना है, कुछ नहीं दिया तो सीधा सीधा पे ऑफ. इवन आफ्टर डूइंग ओवरड्राफ्ट यू कैन पे ऑफ. टेकिंग ओवरड्राफ्ट यू कैन पे ऑफ. ओके. So to bank, what is the corresponding entry to bank का? By capital. By C capital. By C capital, that would be 31958. Get your balance. ये side आएगा bank balance. This is overdraft. To balance CD. Credit is greater than debit. Okay, in bank. देखते हैं वो. अभी बस खत्म. बाकी दो पार्टनर को भी करो बैलेंस, बैंक को करो बैलेंस, और सम इज ओवर. मेक द बैलेंस शीट. कितना आ रहा है टोटल? 43. Yes, and 6875. 60. 60. Yes, 60875. 60875. And what's the balance? 34317. 34317. And 46475. 46475. बस अभी दो पार्टनर का ही बैलेंस शीट बनेगा, तीसरा तो चला गया. पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी ओनली ऑफ टू पार्टनर्स, ए कैप एंड बी कैप. कंटिन्यूइंग बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली दो की बन गई, 34317 and 46475. What's the total? 80792. 80792 बराबर है. और 31958 ये बैंक का बैलेंस है. कितना आ रहा है बैंक का? बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट है ये. 23458. इधर जाएगा ये 234. एसेट और लायबिलिटी. लायबिलिटी. Why liability? Because ओवरड्राफ्ट. ओके. तो रिटायरमेंट में इन 12th स्टैंडर्ड रिमेंबर, पैसा हो ना हो पे कर देना है, ओवरड्राफ्ट करके भी पे कर देना है. कैश के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको करेक्शन करवाया. कैश में ओडी नहीं हो सकता है, तो बैंक ही होगा, तभी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको. गुडविल दिखेगी बैलेंस शीट में? Will you have goodwill in the balance sheet? बोलो. गुडविल होगा बैलेंस शीट में कि नहीं? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Why no goodwill in the balance sheet? Written off. Written off. It's written. Okay, it's written. So now you got factory building, plant and machinery लिख दिया, नहीं लिखा. फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा, प्लांट एंड मशीन लिखा, फर्नीचर भी लिखा, स्टॉक भी लिखा, डेट लिखा, बैंक. क्रेडिटर्स भी नहीं लिखा. क्रेडिटर्स लिख दो द बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स है 25,000. लोन पेएबल नहीं लिखा. लोन पेएबल is 16,000. Then general reserve distributed capital is gone. Goodwill नहीं आएगा. Case for return of your balance sheet should tally. Check. 145250. 5250. Check. Both the sides 145250. Check properly. Both the sides 145250. Check, 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 check. 145250. One 45250. Okay, last sum for the day, sum number 16, 1616. सर जर्नल के लिए स्पेस छोड़ना. नहीं, ये सम में भी जर्नल नहीं. No journal. To leave any side. Next sum. सर सम नंबर कौन सा है? Sum number 16. 1616. 16th sum. सर इसके लिए 100 पेजेस का बुक बनाना तो भी चलेगा ना? नहीं, इसके बाद वाला चैप्टर और ये चैप्टर दोनों एक बुक में आ जाए. डेथ और रिटायर.
सर इसके लिए journal नहीं था ना सेकंड सम के लिए? नहीं, no journal in the second. I made a 100 pages book for this. Like, I told you na 150 to 100. I tell you to club the chapters. Retirement and death, both the chapters you can club in one single book. Okay. Retirement और death दोनों chapters, death और भी छोटा है, retirement का आधा है वो. Retirement is also small, death is also small. So both you can club in one book. What will be the day? already done with so much of portion. Like I'm done with 4 chapters. What? Sir, in this chapter, every sum there will be 3 partners, right? हाँ, 3 minus 1. 4 minus 1 का नहीं आता है. 4 पार्टनर का सम नहीं आएगा डेथ. उधर एडमिशन में भी 2 + 1, इधर 3 - 1. 3 ही रहेगा दोनों में टोटल. बैलेंस शीट का डेट क्या? शीट 1/4/12. 1/4/12. So what sum? 16. 16th sum याद. So in last time we have to write now in the books of ABC. In the books of नहीं लिखना है भाई. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बोला था ना, नहीं लिखना ही नहीं है. एडमिशन रिटायरमेंट ना किसी का भी बुक्स में लिखना ही नहीं है. इन द बुक्स ऑफ ... करके छोड़ सकते हो, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ना. आधा अकाउंट्स ओल्ड का है और आधा बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट पार्ट है वो न्यू का है. कैपिटल और बैलेंस शीट न्यू का है. सो मिक्स्ड है, नहीं लिख सकते यहाँ पे. ठीक है. 4 अकाउंट्स ओल्ड का है, कैपिटल भी ओल्ड है, बैलेंस शीट न्यू का है खाली. तो इट्स अ मिक्सचर. नो नीड टू राइट एनी नेम्स इन द बुक्स ऑफ 16th sum we are doing. Let's begin quickly. Bank है. सर 2 मिनट. सर रुको, ड्रॉ कर रहे हैं. भी कल से घर से ड्रॉ करके लाना है. 4 सम का 4 sums you have to draw and keep. 4 sums का you have to draw and keep from tomorrow. Tomorrow मतलब day after tomorrow. Now it is Monday, Wednesday, Friday. तो आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के बोर्ड पैटर्न में. फाइनल अकाउंट्स हमने किया, वो कंपलसरी था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन बाकी ये जो आपका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होता है ना, उसमें ये 4 टॉपिक का ऑप्शन होता है आपको. कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसॉल्यूशन. इसमें से कोई भी 2 करना आना चाहिए आपको. मतलब 4 में से 3 टॉपिक अच्छे से आना चाहिए. ये 3 अच्छे से अभी हो गए आपके, बीओई, एडमिशन और अभी रिटायरमेंट का. तो यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन. ये 3 चैप्टर में से आपका 20 मार्क कवर हो जाएगा. 20 मार्क. So which two should we do according to you? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स ऑल्सो. वेरी मच चांसेस की ऑप्शन ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा आएगा. क्वेश्चन 2 में यू विल हैव दिस कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन 2 में बीओई या डिसॉल्यूशन, इसमें से एक करना पड़ेगा. और क्वेश्चन 3 में एडमिशन या रिटायरमेंट, इसमें से एक करना पड़ेगा. ओके. बीओई डिसॉल्यूशन में से एक और एडमिशन रिटायरमेंट में से. क्योंकि पास्ट 15 साल 2 साल से पैटर्न चेंज किया है. तो So according to you, which one should we do in the option? Which one is better? एवरीथिंग वी विल टू डू एवरीथिंग परफेक्टली ओनली. सर डिसॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्यूशन में बिजनेस बंद होता है, एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करना. क्लोज्ड, बिजनेस क्लोज्ड. Means retirement and death दोनों सेम ही है क्या ऑलमोस्ट?
ऑलमोस्ट सेम, ओनली वन थिंग इज डिफरेंट. आई टोल्ड यू ना, डेथ बीच में मर जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, बाकी पूरा रिटायरमेंट. जो रिटायरमेंट में वो सब डेथ में थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है बस. फर्स्ट चैप्टर के बिगिनिंग में एडमिशन अगर अच्छे से आता होगा तो रिटायरमेंट अपने आप आएगा. रिटायरमेंट आ रहा होगा तो डेथ तो ऑलमोस्ट इजी. सर डेथ पे हम लोग लोन क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना. डेथ में लोन क्रिएट करेंगे लेकिन वो मरे हुए बंदे के नाम पे नहीं, उसके एग्जीक्यूटर के नाम. नॉमिनी. तो डेथ में क्या समथिंग कॉल्ड डेथ नोट. डेथ नोट करके कुछ तो है. डेथ नोट. हाँ. द सेंस डेथ नोट मतलब व्हाट आर यू आस्किंग? नहीं, because so last time I saw कुछ लिखा था SYJC डेथ नोट. अच्छा, डेथ का वर्किंग नोट यू आर सेइंग, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट का नोट है डेथ. और कुछ वर्किंग नोट एक बोला ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक्स्ट्रा बनता है वो है, और कुछ. चलो यहाँ पे आ जाओ. 16 सम ट्राई करो, अभी ये सम खुद से ट्राई करो करने का. फर्स्ट स्टेप बताओ, आप ही बताओ मुझे फटाफट. बैलेंसेस. टू बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस से शुरू करो, दैट इज 23,000. गुडविल है नहीं बैलेंस शीट में. गो टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी, दैट इज 80, 50 and 30. 80, 50 and 30,000. Reserves या losses, do you find any reserves or losses in the sum? No. Do you find any capital entry in the death sum? No. Do you find goodwill? Goodwill का next step, goodwill, check which case of goodwill do you have. Come on, identify all of it. Case 3. Case 3, 1, 2, 4, which case? 3. Why 3? Why not 1? Because share is not mentioned. Share is not mentioned. और firm की goodwill मतलब total goodwill. So it is total goodwill raised. Okay. How many entries in case 3? One entry. What is that one entry? Goodwill to all the partners. Goodwill to Sanil, Nitish and Sapna Capital. बराबर है. Goodwill to all the 3 partners, old partners in old ratio. What's our old ratio? 3:2:1. 3:2:1. Is that right? 3:2:1. ऊपर चेक करो. You know how to convert it? Half, 1/3 और 1/6 है. तो half मतलब into 3/3 करो. तो 3 and 1/6 को 1/6 ही रहने दो. 6 को कॉमन डिनोमिनेटर बनाओ. So 3:2:1. Divide that. Goodwill कितना है? 30,000 in the ratio of 3:2:1. 15, 10, 5 आ रहा है. 15, 10, 5. What will be the corresponding entry? Goodwill to old partner. तो old partner में buy goodwill. Will goodwill appear in the balance sheet? Yes. No. Yes. Maybe. Yes. Why yes? It's not written. Not written. लास्ट सम में क्यों नहीं दिखा बैलेंस शीट में? राइट ऑफ. राइट ऑफ मतलब डेप्रिशिएट कर लिया था, ताबड़तोड़ लॉस शेयर कर लिया था. यहाँ पर राइट ऑफ नहीं, तो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. ओके. देन उसके बाद खत्म. गुडविल हो गया. रिवैल पे जाओ. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय सनील फॉर 4 में. फर्नीचर का बुक वैल्यू देखो कितना है. फर्नीचर का बुक वैल्यू कितने का था? फर्नीचर 5,000 का कितने में लेके जा रहा है? 4,700 में. 300 का क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? डेप्रिसिएशन. घटा. तो गेन की लॉस. ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 4,700 का ले जा रहा हो और बाकी 300 का बिजनेस में. नहीं. तो फिर ऐसा देता. फर्नीचर वॉज फर्नीचर ऑफ 4,700 वॉज टेकन ओवर बाय सनील फॉर 4,700 टेकन फॉर 4,700. यहाँ पे क्या दिया पढ़ो. फर्नीचर मतलब पूरा फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय सनील फॉर 4,700. टेक ओवर वैल्यू इज 4,700. बताओ मुझे
कितने का फर्नीचर था? 5,000 का. He took over for 4,700. Gain or loss? Loss. Loss. तो किधर जाएगा? रिवैल में 200. Eval में 2 furniture, that would be 300. 300. And what about asset taken over? 2 furniture रखा. Partners capital to asset. Partner capital to asset. It's like drawings. याद है drawings to cash. Drawing के जगह capital, capital to cash और cash के जगह furniture. तो capital to furniture. Asset taken over मतलब asset कम हुआ credit और पैसा नहीं आया ना तो capital घटा दिया. Business will pay that less to the partner. So Sunil capital में 2 furniture. Sunil capital में 2 furniture. How much? 5,000 to 4,700. 4,700. Got it? Partner capital में 4,700. Is that clear? Will you have furniture in the new balance sheet now? No. Gone. Taken over. Okay. Make a provision for unpaid expenses 1,700. Monday का है unpaid. Outstanding expense. तो पहले था क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक में? अभी लेके आया. लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? बढ़ा. तो गेन सर प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस इसलिए नहीं लिख सकते क्या? यही लिखना पड़े. प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस. यस. सेम थिंग यू कैन कॉपी. नो प्रॉब्लम. सेम थिंग आल्सो यू कैन कॉपी. प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस लायबिलिटी और रिवाइल डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनपेड. सेम थिंग. चलेगा. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. बेसिकली लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस. ओके. और कुछ ऑफ द अमाउंट ड्यू पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग टू बी ट्रांसफर टू अवर लोन. समझ में आया क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाफ कैश है और हाफ लोन. थोड़ा कैश थोड़ा लोन. जो भी बैलेंस है उसमें से 7,500 पे किया, बाकी का लोन में डाला. करते हैं जब भी आएंगे. अभी ढूंढ लो प्रॉफिट है कि लॉस है. बताओ यहाँ पे. प्रॉफिट. प्रॉफिट है. सॉरी लॉस. व्हाट गर्गी. वीडियो ऑन ब्रेन आल्सो ऑफ. Loss it is. Okay, who will share this loss? All the partners. Who are the partners? Nitish and Sapna. Which ratio? Old ratio. Old ratio. 3:1. करो divide 3:1 point में. 1,667 and 333. 1,667,333. It's a loss. बाय पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में क्या दिखेगा? टू रिवाल. अब बंद करना है कैपिटल. कोई प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो है नहीं. इसमें बहुत रेयरली दिखेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. एडमिशन में भर भर के आता है. रिटायरमेंट में प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1-2 समय. बोर्ड में तो आज तक नहीं पूछा है. मैंने डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन में है. वहां पे लर्न करेंगे हम लोग वापस प्रोपोर्शनेट कैपिटल. 333 इन सपना. 333. ओह सॉरी 333. 667 एंड 333. मुझे बताओ सबसे पहले किसको बंद करना है आपको? सपना जी को बंद. देखो कितना है यहाँ पे. 45 माइनस 333 कितना होता है? 35 माइनस 3. लिखना मत. 35 माइनस 333 खाली बोलो मेरे को कितना होता है. 34,667 होता है. क्या पूरा लोन में डालना है? क्या पूरा कैश में डालना है? 7,500 कैश में जाएगा, बाकी सब लोन में. तो बचेगा कितना? इसमें से 7,500 हटाओ. कॉमन सेंस. एंट्री क्या करोगे बताओ? जो कैश में दिया उसकी एंट्री क्या करोगे? जो कैश में दिया उसकी एंट्री. सपना कैपिटल टू बैंक. सपना कैपिटल में टू बैंक. कितना कितना? सपना कैपिटल में टू बैंक कितना? 7,500. 7,500. भाई 7,500 क्यों? इतना में दिया है 7,500 दे दिया उसको. ओके. व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंट्री टू बैंक का? बाय सपना. The remaining amount
सपना कैपिटल टू लोन फ्रॉम सपना। टू सपना लोन, सिंपली टू सपना लोन, तो सपनाज लोन कितना, सपनाज लोन कितना आएगा, 27 समझा ये कहां से आया 27,167, क्रेडिट माइनस डेबिट करने का, क्रेडिट माइनस डेबिट कितना आया 34,667, 34,667 में से 7,500 दे दिया तो बचा कितना 27,167, दैट इज लोन, सिंपल। वेयर विल दिस लोन अपीयर, लायबिलिटी, लायबिलिटी में जाएगा आपका, एंड बस बाकी दो को बैलेंस करो, सम इज ओवर, बैलेंस शीट बनाओ, बाकी दो का बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस सीडी। सनील और नीतीश का कितना आता है, ये 95 आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है 60, 95 माइनस 1 94, 90 89 89,300, हाँ और इसका 59,333 बराबर है। अब दो का ही बैलेंस शीट बनेगा, सनील कैपिटल और नीतीश कैपिटल, 89,300 और 59,333, व्हाट इज द टोटल, one four 148,633, get your other assets, no change, chapo, machinery 40,000, furniture लिखोगे, will you write furniture in the new balance sheet, बोलो, no, it is taken over, so gone, कि पार्टनर कैपिटल में 2 एसेट बेच दिया, टेक ओवर हो गया तो गया, sundry asset as it is, stock as it is 40,000, debtors as it is 32,000, bank, what is the balance at bank, check what is the balance at bank by balance CD, 15,500. 15,500, you will put that 15,500 in your balance sheet, bank balance 15,500, will goodwill appear in the balance sheet, Yes. yes, थर्ड केस था ना, तो बैलेंस आएगा ऑटोमेटिकली 30,000, अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, तो ये जाएगा गुडविल, गुडविल 40,000, the balance sheet, liability side you got bills payable, that is 40,000 as it is, capital लिख दिया, लोन, सपनाज लोन, सपना का लोन कितना आएगा, सपना का लोन इन द बैलेंस शीट, सपनाज लोन 27,167, इज दैट क्लियर, क्यों लोन दिखा बैलेंस शीट में, समझ में आया, व्हाई लोन डिड वी शो इन द बैलेंस शीट, व्हाई डिड वी शो लोन इन द बैलेंस शीट, द लायबिलिटी, देना बाकी है, पूरा पैसा दिया नहीं था, थोड़ा पार्ट पेमेंट है, थोड़ा इंस्टॉलमेंट है, थोड़ा लमसम है, तो पूरा लमसम नहीं, पूरा इंस्टॉलमेंट है, करो कितना आ रहा है ये टोटल बैलेंस शीट, टैली इज ऑन 207,500, 2075, 2075, okay, 207 balance sheet tallies, that, okay, revise this properly, no written homework, next lecture on Wednesday, draw for 4 sums and keep, okay, 4 sums का ड्रॉ करके रखना, और शाम को प्रैक्टिस है 7:30 to 9, okay, 7:30 to 9 का प्रैक्टिस है, और जिसने सबमिट नहीं किया नोटबुक ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन का ही प्रैक्टिस है, सबमिट नहीं किया तो क्लास में आके सबमिट कर देना, ओके, और जिसका सबमिटेड है कल, आज कलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट वीक टेस्ट है एडमिशन का, Bye, sir. Thank you. जिसका सबमिट किया था कल, आज कलेक्ट, Timing for collection of books. सेम 7:30 to 9.